Hello everyone. So our topic for today is chapter number 7, population. So here is an activity which is given to you all. Obtain the following information for a particular day. How many students are there in your class? Okay, so you need to gather information कि आपके class में impromptu कितने लोग होंगे. Out of total numbers, how many are boys and how many are girls? How many are absent? What is the total strength of student in your school? ये तो क्लास का हो गया पहले. अभी पूरा ओवरऑल स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होंगे. फिर व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर स्कूल. नाउ दिस इज इन रिगार्ड्स टू स्कूल. ऊपर वाला था जो क्लास के रिगार्डिंग में था कि क्लास में कितने बॉयज़ गर्ल्स है, एब्सेंट कितने. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द एंटायर स्कूल. Which class has maximum strength of student? Which class has the most absentees? Okay, so you just have to find out a approx number. Okay, in the above exercise you obtained information about the strength of students in your school, right? So that is how you get an idea that what number of total students you have in your school. Similarly, in a similar manner, information can be obtained about the population of a village, taluka, district, state, nation and world. While obtaining this information, we have to also consider age and sex ratio, literacy, etc. Okay, so इसके according we get to know the total number of people present in our school. In the similar way, people carry out, like these government bodies, they carry out the number of people present in your विलेज, तालुका, स्टेट लेवल के ऊपर कितने पीपल है, नेशन वाइज कितने लोग हैं, वैसे ये भी कैलकुलेट होता है. ओके, सो व्हाइल ऑब्टेनिंग दिस इंफॉर्मेशन वी शुड ऑलवेज कंसिडर द एज. ओके, कि पहले क्या कंसिडर किया जाता है, ऑलवेज द एज ऑफ द पीपल. द सेक्स रेशियो, व्हाट डू मीन बाय सेक्स रेशियो? रेशियो टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल. ओके, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज नोन एज सेक्स रेशियो. एंड द अनदर फैक्टर विच दे हैव डिस्क्राइब्ड इज literacy. Okay, कि literacy के level पे how many people are literate, even that is taken into consideration. Okay, so वैसे these all are the factors through which you get to know the population of a particular place or district. Several factors are responsible for the development of a region. अरे यार, 1 second ना. Yes, several such factors are responsible for the development of a region. Out of these, population is an important factor. While studying the population of any region, the following aspects have to be consideration. Okay, so for the development of a region, किसी एक चीज़ का development के लिए we need all of these facilities, right? We need all of these factors like sex ratio, literacy, age group, etc. But the major part is we need population. We should know what is the population of that region, and for that we need certain factors. So how we can study population? Let us see. What are those factors? Population growth, population distribution, population density and structure of population. Okay, so over here you can see there is total population in 2016. तो 2016 में A city में there was 1 lakh population, wherein B city it was 1,10,000. Okay, while total number of children born, so A city में there was 2,000 and B city में there was 2,750. The total number of deaths which has taken place, it was A city में 1,500 and B it was 2,200. People who have migrated from outside, बाहर से कौन अंदर आया है, सो फॉर ए इट वॉज 23,000, फॉर बी इट वॉज 25 एंड पीपल हु हैव माइग्रेटेड आउट, जो यहाँ से बाहर गए हैं, इट वॉज 2,000 and 5,000. सो विच सिटी हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन? सो यू कैन सी न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन सेकेंड वाला पॉइंट है एंड इसमें ए में देर इज़ 2,000 एंड बी में इट इज़ 2,750. सो द आंसर रिमेन्स बी, 2,750. विच सिटी रिकॉर्ड्स ग्रेटर number of deaths? So again third point is number of deaths, in which you can see the number of B is more. So that is how you can calculate, you can write all of those answer. Coming towards next topic, population growth. From the above exercise, it has been seen that there is a constant change in the population of a region. Sometimes there is a decrease in a population and at other times there is an increase. This increase or decrease is related to फॉलोइंग फैक्टर्स. ओके, दैट यू माइट सी. बराबर अभी तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यू हैव सीन दैट बी वाला जो सिटी है दैट इज़ कंपैरेटिवली ग्रेटर इन एवरी फेज़, के हर एक फेज़ में वो ग्रेटर ज़्यादा है.
बराबर, सबसे थोड़ा आगे है. बट all of these factors they do affect the population. Okay, so कौन से factor पे population affect होता है? Let us see. First is the birth rate. The number of live births per 1000 people in a year shows birth rate. Okay, so how do we calculate birth rate? कि जो number of life है, कितने born हुए हैं पर 1000 पीपल. ओके, 1000 पीपल में कितने नंबर लोग बॉर्न हुए, वो जब हम लोग रेशियो निकालते हैं ना इन अ ईयर एनुअल वाइज, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट. डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन ईयर शोज द डेथ रेट. सिमिलरली लाइक अ बर्थ ईयर. Life expectancy, the average lifespan of an individual expected in an area at time of birth. Okay, कि time of birth पे हम लोग एक रफ अप्रॉक्स लगा देते हैं that the person will live for more than 50-60 years. तो वो एक रेशियो जो हम लोग लगाते हैं, that average lifespan. Migration, the movement of an individual or a group out of an area or into an area is called migration, right? Migration सबको पता है, some migrate to other places while some come to stay at that places. तो ये जो changes होता है ना, someone goes there, someone comes to leave, that is called as migration. When people move into a region from outside for residence, it is called in-migration. बराबर, मतलब क्या, बाहर से कोई अगर हमारे इसमें आया रहने के लिए तो दैट इज़ कॉल्ड एज इन माइग्रेशन, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टेइंग इन आवर सोसाइटी. सो दैट इज़ वाई वी कॉल एज इन माइग्रेशन. एंड व्हेन पीपल मूव आउट ऑफ अ रीजन फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, इट इज़ कॉल्ड आउट माइग्रेशन. एंड अगर कोई शिफ्ट हो रहा है बाहर, अभी जैसे समझो हमारी एक सोसाइटी का एग्जाम्पल लेते, तो इफ समवन इज गोइंग टू कम and stay in our society, so they are staying in our society, तो we call it as in society. सोसाइटी को बेस रखने का, सोसाइटी को पकड़ के रखने का, सोसाइटी के अंदर कोई रहने को आ रहा है तो इन, सोसाइटी से बाहर कोई जा रहा है तो आउट माइग्रेशन. वैसा all the above factors affect the population growth. The difference between the birth rate and the death rate is clearly responsible for the natural changes in population. Similarly, the migration of an individual or a group constantly results in the change of population. That all of these factors do play an important role. किस केस में? population के केस में. जैसे कि birth rate और death rate है, बराबर, ये factor तो important role play करता ही है, because जितना numbers of birth rate बढ़ रहा है उतना भी नो द population is increasing. जितना डेथ बढ़ रहा है उतना भी नो कि population कम हो रहा है. So all of these, these are important points through which we understand population about that particular place, कि population बढ़ रहा है या घट रहा है. वैसे ही माइग्रेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माइग्रेशन भी हम लोग को हेल्प करता है. अगर बहुत सारे पब्लिक माइग्रेट हो गए तो वी नो दैट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग. बहुत सारे पब्लिक आ गए तो वी नो दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन. ऑन द अदर हैंड, अ कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द राइट प्रपोर्शन. बराबर है ना? बराबर ना. इफ़ यू डोंट कैलकुलेट द पॉपुलेशन, कि अगर आपको एक रफ आइडिया नहीं है कि आपके एरिया में कितना पॉपुलेशन है, इफ़ देर इज़ अनचेक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर फर्दर पीपल, राइट. कि कोई भी मटेरियल के लिए, फूड ग्रेन्स हो गया, किसी चीज़ के लिए भी, फॉर लैंड, फॉर एरियाज, फॉर फ्लैट्स, किसी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है. वेर इन इफ़ यू कैलकुलेट योर ग्रोथ प्रॉपरली, देन इट इज़ नॉट एन इशू, राइट. बिकॉज अगर आपका कैलकुलेटेड है, सो फॉर फूड ग्रेन्स यू हैव प्रॉपर अमाउंट, जितना लोगों को देना है उतना है, फ्लैट्स उतने अवेलेबल रहेंगे, राइट. सो अ चेक्ड population or a controlled population will always lead to a right proportion, right. कि अगर सब चीज़ें अवेलेबल है पॉपुलेशन के लिए, तो it will it would lead to the development of that region. बट अगर अनचेक्ड ग्रोथ है, या मतलब क्या, अगर आप लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हो कितना पॉपुलेशन है, क्या है, फिर वो रीजन को प्रॉब्लम हो सकता है. अ कंट्रोल्ड पॉपुलेशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन. बराबर, अगर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, कि कंट्रोल्ड है, मेंटेन है, दैट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, कि वो रीजन डेवलप्ड है. टेक अबाउट 100 grains ऑफ ब्लैक आई बीन्स, चवली, तो जो चवली रहता है ना, उसका आपको 100 grains लेना है. फर्स्ट स्कैटर दीज बीन्स ऑन अ स्क्वायर ऑफ 30 into 30 सेंटीमीटर. तो 30 into 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाना है, उस पर आपको स्कैटर करना है ना. वही नाउ स्कैटर 100 more beans, फिर और 100 लेना है और उसको 15 into 15 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर पे स्कैटर करना है. While scattering the grains, take care to see that the grain do not touch one another or the pile up
ऑन 1 2, ओके। तो मेक श्योर आपको क्या करना है दैट दे शुड नॉट बी एक के ऊपर एक, और साइड एकदम क्लोजली भी नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, ओके। इन विच एरियाज ऑफ द स्क्वायर कैन द ग्रेन्स ऑफ चवली बी ईजीली स्कैटर्ड? तो कौन से एरिया में ग्रेन्स इजीली स्कैटर हो सकता है? इन विच ऑफ द स्क्वेयर्स डू द ग्रेन्स ऑफ चवली अपीयर क्राउडेड? सी, अगर आप लोग फिगर 7.1 देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा, राइट, कि जिसका एरिया लैंड ज़्यादा है, दैट इज़ 15 × 15, उसमें वो ज़्यादा अच्छे से स्कैटर होगा, उसमें ये नहीं होगा, ऊपर के ऊपर नहीं होगा, उसमें आराम से स्कैटर्ड होगा। वेर इन इफ़ यू सी फिगर 7.1, उसमें जो 30 × 30 का जो सेंटीमीटर वाला है, सॉरी 30 × 30 का जो बड़ा वाला है, उसमें अच्छे से स्कैटर्ड है, वाइल इन 15 × 50 में वो गचमड़ में है, बराबर। सो इन विच ऑफ द स्क्वायर डू द ग्रेन्स ऑफ चवली अपीयर क्राउडेड? किसमें क्राउडेड दिखता है? तो इट अपीयर्स क्राउडेड इन 15 × 15, वाई? बिकॉज वो छोटा वाला है। Can there be a correlation between the distribution of chawli grains and the distribution of population? So इससे क्या हम लोग population का भी एक example या rough idea ले सकते हैं क्या? Distribution of population, इसमें you will get the answer. When the grains of chawli are scattered over two areas of different sizes, in the larger area the distribution appears sparse. See figure 7.1, right? कि जो larger area है 30 × 30 में, उसमें the population is sparse. What do you mean by sparse? What do you mean by sparse? तो basically कैसे होता है sparse में, ये बड़ा सा area है पर वहाँ पे जो अंदर ये है, कोई भी ले सकते हो, जो भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो वो अंदर कम है। तो यहाँ पे भी है टेकिंग चवली, तो चवली का मतलब क्या हो गया, एरिया ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर जो चवली है वो कम क्वांटिटी में है, वैसा। Where was I? Yeah, see figure 7.1. Similarly we can understand the distribution of population in a region, कि वैसे हम लोग एक region का भी population निकाल सकते हैं। Some regions are mountainous while others are flat plains. Geographical conditions may vary. Some regions are well endowed with natural resources while others have limited resources. These conditions affect the distribution of population, right? कि all of these conditions do affect the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे? अभी देखो, सम आर माउंटेनस व सम आर प्लेन। सो माउंटेन एरियाज पे कैसे पॉपुलेशन कम होता है, बिकॉज वहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है एंड ऑल ऑफ द फैसिलिटीज़ आर लेस। सो वहाँ पे कंपैरेटिवली इट इज़ लेस देन वेल कंसिडरिंग प्लेन्स वाले सिस्टम, राइट। व्हेन द प्लेस वेर यू हैव मैक्सिमम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे ज़्यादा होता है। अगेन द सेम कंडीशन कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल है, वहाँ पे द पॉपुलेशन विल बी मोर। वेर इट इज़ लेस अवेलेबल और इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल, वहाँ पे द पॉपुलेशन इज़ लेस। सो पॉपुलेशन डू अफेक्ट्स all of these factors. It depends on all of these factors. In areas with abundant resources, naturally the population is more. As I said you all, in this area there is dense population distribution. In areas with scarce resource, unfavorable climate, undulating terrain, etc., the population distribution is sparse. बराबर, sparse मतलब क्या, कम होता है। कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे scarce resources है। scarce resource मतलब क्या, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल, ओके, कि बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग स्कार्स बोलते हैं। अनफेवरेबल क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट भी अनफेवरेबल है, इट्स नॉट प्रॉपर। एंड अनड्यूलेटिंग टेरेन, जो टेरेन है वो भी अनड्यूलेटिंग है, बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर जहाँ पे मतलब at such places the population would be less. Draw a square of 2 × 2 meter. In this square, ask 2 students to stand. Slowly increase the number of students and ask the following question. In the space provided, can you move around easily? See 7.2 में you can see that. जैसे बच्चे लोग बढ़ते जाएंगे, मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। स्टार्टिंग में इट वुड बी इजी बिकॉज एक बच्चा खड़ा है तो वो आराम से मूव कर सकता है, 2 बच्चे आए तो भी थोड़ा अच्छे से होगा, 3 आए तो भी दे कैन डू, बट एज द नंबर कीप्स इंक्रीजिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट। कैन मोर स्टूडेंट्स बी अकोमोडेटेड इन द स्क्वायर? क्या और ला सकते हैं? इफ़ येस, जगह है तो वी कैन bring into. When the answer to the above questions are negative, then ask all the students to write their observation about the experiment and
इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इन द क्लास. सो 43 पे हम लोग वो डायग्राम देख लेते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है पॉपुलेशन रीजन का. हम लोग ने अभी तक तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे. हम लोग ने क्लाइमेट देखा बराबर. अभी हम लोग ने देखा अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे कोई रहेगा नहीं. नेचुरल रिसोर्सेज देखे. नेचुरल रिसोर्सेज भी जहाँ पे होगा वहाँ पे ही लोग रहेंगे बराबर. फिर क्या देखा हम लोग ने. वी हैव सीन या बस इतना ही. अभी तक तो हम लोग ने उतना ही देखा. अभी ये वाला मैप समझते हैं. फिजिकल फैक्टर्स. लेट अस सी फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज लोकेशन. सो लोकेशन डू अफेक्ट. एज आई सेड, अगर माउंटेनस एरिया है तो वहाँ पे लेस रहेगा. प्लेन एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा. रिलीफ. क्लाइमेट भी हम लोग ने डिस्कस किया. सॉइल वो भी हम लोग ने डिस्कस किया. नेचुरल रिसोर्सेज के जहाँ पे इट इज़ प्रॉपर एंड फेवरेबल वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा. मिनरल रिसोर्सेज. इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन सा डिपेंड करता है. एग्रीकल्चर. जो प्लेस में एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे से हो रहा है और जहाँ पे ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़ आर टेकिंग प्लेस, ग्रेजुअली द पॉपुलेशन वुड बी मोर. इंडस्ट्री जहाँ पे है. इंडस्ट्रीज़ में पीपल प्रेफर टू स्टे मोर वेयर देर आर इंडस्ट्रीज बिकॉज देर विल बी शॉप्स एंड एवरीथिंग. अर्बनाइजेशन. मॉडर्निटी है. ट्रांसपोर्ट है. मार्केट्स है. पॉलिटिकल फैक्टर्स में कौन से अफेक्ट हो गए. वॉर्स. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये सब लोग हम लोग आगे आगे देखते दैट हाउ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन. Geographical explanation. Now let us see density of population. Density मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग अभी देखते हैं. The ratio of the population of a country to its area is population density. अभी रेशियो किसका होता है. पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, उसके नीचे उसका एरिया, टू इट्स एरिया. ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो द फॉर्मूला इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन और उसके नीचे जो एरिया है वो. If you find out, you will find the density. Okay, the density is calculated as per the formula given, so you need to remember the formula. बराबर. अभी यूपी का वहाँ पे उन लोग ने पॉपुलेशन भी हम लोग को दिया है, वहाँ पे एरिया भी हम लोग को दिया है. यू नीड टू फाइंड आउट डेंसिटी. इट इज़ ईजी, यू कैन फाइंड इट आउट. दिस वुड बी अ होमवर्क. पॉपुलेशन क्या रहेगा, ऊपर जो दिया है वो 1998, 12, 33, 41 आप ऊपर लिखोगे. नीचे लिखोगे आप लोग 2,40,926. फिर आपको कैलकुलेट करना. जो आंसर आया दैट वुड बी डेंसिटी. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी सबका भी वैसे ही करना है. फाइन. From the area of a region and its population, one can calculate how many people live in a square kilometer. Density of population is not the same everywhere. In some regions, the area is small, but the population is large. For example, Kerala. In other regions, the area is large, but the population is small. Therefore, the density of population is low. For example, Rajasthan. बराबर कि जो density of population है वो सब जगह सेम नहीं हो सकता. क्यों? Because density of population का फॉर्मूला क्या है, उस रीजन का पॉपुलेशन और नीचे उस रीजन का एरिया. बराबर. तो हर किसी में क्या होगा, कोई कोई बार में पॉपुलेशन में फ़र्क हो सकता है, कोई कोई बार में एरिया में फ़र्क हो सकता है. बराबर. तो देखो कोई कोई एरिया में क्या होता है, एरिया छोटा है, मेरे पास एरिया कम है बट वो एरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. तो ऐसा एक केस है केरला. केरला में कैसा है, द एरिया इज़ वेरी स्मॉल बट द पॉपुलेशन देयर इज़ वेरी मच वास्ट. वाइल इन सम केसेस क्या होता है स्टूडेंट कि एरिया ज़्यादा है, एरिया बड़ा है पर वहाँ का पॉपुलेशन कम है. ओके, सच प्लेस इज राजस्थान. अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स. अभी राजस्थान में कैसा है, देखो एरिया क्या बताया गया है, एरिया लार्ज है, एरिया बहुत है बट पॉपुलेशन कम है. व्हाई डू यू थिंक पॉपुलेशन इज लेस? अगेन एज आई सेड, क्लाइमेट इट डू अफेक्ट्स, राइट. एवरी टाइम इट इज दैट प्लेस डजंट गेट्स रेन, इट इज एवरी टाइम हॉट ओवर देयर. तो अगेन द क्लाइमेट इज प्लेइंग. जैसे मैंने बोला क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन. क्लाइमेट वहाँ का हमेशा हॉट रहता है, पीपल वोंट प्रेफर टू स्टे देयर, दैट इज वाई द पॉपुलेशन ओवर देयर इज लेस and the area is more. Understood? Try this. Think of 20 people in your neighborhood and divide them into following categories: young, adult, old, educated, uneducated, female, male, students, laborers, merchant, industrial, unemployed, housewives, etc. Okay? 20 लोगों को लेना है, उनको ये सब में categorize करना है. From the above classification, what are the salient features of your neighborhood? Okay? इनमें से salient features क्या है ना? What do you mean by salient features? के बेसिक फीचर्स क्या है, कौन से बेसिस पे कैटेगराइज हुए वो लोग.
कैन सच अ क्लासिफिकेशन बी डन फॉर द कंट्री एज अ होल? तो ये तो आपने 20% को लेके नेबर्स में कर दिया, पूरे कंट्री का वैसे एज अ होल हम लोग कर सकते हैं क्या? को रिलेट दिस कैटेगरीज विद द क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, क्या ये पॉपुलेशन से आप लोग उसको को रिलेट कर सकते हो? एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग एंड राइट देम डाउन. लेट अस सी, आगे इसका आंसर मिलेगा. स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. ओके, पॉपुलेशन को हम लोग बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लेट अस सी विच वन आर दोज. बाय स्टडिंग द को रिलेशन बिटवीन द सब डिविजन्स एंड understanding of the structure and quality of population is possible. The groups: male, excellent, illiterate, children, unemployed. Sorry, can you tell? Yeah, can you tell? Male, adolescent, illiterate, children, unemployed, infants, literate, rural, working. All of these are the categories जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो. Classify the above group into the category below. Sex, तो सेक्स में कौन आ जाएंगे? There is male, there is female, बराबर. और कौन कौन आ सकता है? There is adult, young, वैसा. So ratio between men and women would come into sex. Age में आपको age wise लिखना है. It can be old, young, यस, ओल्ड, यंग, और क्या नहीं, चिल्ड्रंस आ सकता है, अडल्ट नहीं, अर्बन में क्या आएगा? द मॉडर्न पीपल, लिटरेसी, पॉपुलेशन, वैसे सब में आपको डिवाइड करना है. पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड एज पर द ग्रुप्स गिवन बिलो, राइट. ओवरऑल पॉपुलेशन को हम लोग ये सब कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं. द सब ग्रुप्स एंड द रिलेशनशिप्स विद वन अनदर इज स्टडीड इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. कि वैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर निकालते हैं पॉपुलेशन का बाय डिवाइडिंग इनटू सब ग्रुप्स. Sex ratio. Now let's talk about sex ratio. What do you mean by sex ratio? As per the gender, population can be divided into males and females. बराबर. हम लोग ने ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स देखा. You can divide it into male, female, young, old, फिर रूरल से है, अर्बन से है, सब में आप लोग डिवाइड कर सकते हो. बट बेसिक कैटेगरी क्या आता है? You have to divide it into males and females. This is a natural division which can be easily understood. अगर ये समझने में भी ईजी है, बराबर. बाकी सब में कैसे अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, तो आपको पूछना पड़ता है भाई आपने पढ़ाई की है, नहीं की है, कितनी की है. बट दिस इज समथिंग विच यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज. देख के आपको पता चल जाता है ओके मेल है, फीमेल है, वैसा. इन अ पॉपुलेशन व्हेन बोथ द जेंडर्स आर अराउंड द सेम नंबर इट इंडिकेट्स अ बैलेंस पॉपुलेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस पॉपुलेशन? बैलेंस किसको बोलेंगे? बैलेंस मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए. तो अगर नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ category of females, then we called as balanced population. कि वहाँ का population balanced है. In population studies, the ratio of men and women is considered the important. तो यहाँ पे अगेन दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? सेक्स रेशियो का. तो उसमें क्या होएगा? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000. ओके, सो व्हेन यू डू नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000 यू गेट सेक्स रेशियो. दो फॉर्मूला अब तक हम लोग ने किया. पहले वी डिड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन और उसके नीचे एरिया. एंड अभी हम लोग ने किया सेक्स रेशियो. When for every 1000 males the number of female is less, the sex ratio is said to be low. बराबर कि मेल का नंबर फीमेल से कम है. नंबर ऑफ फीमेल इज लेस एंड मेल्स का ज़्यादा है, देन वी कॉल एज इट इज़ लो. एंड एवरी 1000 मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल इज मोर, द सेक्स रेशियो इज सेड टू बी हाई. बिकॉज ऊपर का नंबर सी न्यूमरेटर में क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. तो जब नंबर ऑफ फीमेल्स ज़्यादा होंगी तो सेक्स रेशियो ज़्यादा होगा. जब नंबर ऑफ मेल्स कम होंगे तो वो कम होगा. समझा? देयर इज़ फिगर 7.3 विच इज़ गिवन जो which describes the sex ratio in 2011. okay, 11 का बताया गया है. x ratio रे x एक्सिस पे you have places and y एक्सिस पे you have number of males. okay, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स के हिसाब से बताया गया है. पर हम लोग ने ऊपर क्या देखा? हम लोग नंबर ऑफ फीमेल्स के हिसाब से देखते. तो अगर फीमेल्स का ज़्यादा है तो सेक्स रेशियो ज़्यादा है. वैसे तो यहाँ पे अभी मेल्स दिया है तो आप लोग को उल्टा करना है. इट वुड बी इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, तो यहाँ पे इफ़ नंबर ऑफ मेल्स इज़ मोर देन द सेक्स रेशियो इज़ लेस. ओके, तो केरला में इट इज़ मोर. फिर चंडीगढ़ में इट इज़ 991, महाराष्ट्र में इट इज़ 929, 918, इन बिहार एंड इन हरियाणा इट इज़
879. So which state has the highest sex ratio? Now this can be confusing. एक बात सिर्फ अच्छे से ध्यान रखो, सी वहाँ पे ऊपर ही हम लोग ने देखा that for every 1000 males the number of female is more, the sex ratio is said to be high. ओके तो सेक्स रेशियो कब हाई होता है? जब नंबर ऑफ फीमेल्स ज़्यादा होता है. अभी यहाँ पे हम लोग को मेल्स दिया है तो हम लोग को उल्टा करना है. ये एक समझा आप लोगों को? इट वुड बी इनवर्स प्रोपोर्शन. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब क्या हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस में है? तो जहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स सबसे कम होंगे. तो सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में. तो 879. तो हरियाणा इज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो. समझा? विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो. तो लोएस्ट मतलब क्या? नंबर ऑफ मेल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. बराबर समझ रहा है? नहीं तो ऐसे अगर ऐसे कंफ्यूजिंग हो रहा है तो कैसे याद रखना है? सी हाईएस्ट सेक्स रेशियो बोला है. बराबर. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो. हाईएस्ट मतलब क्या? नंबर ऑफ़ फीमेल्स ज़्यादा होंगे. तो ऑपोजिट हो गया नंबर ऑफ़ मेल्स कम होंगे. तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ मेल्स कम है वो देखने का. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो. लोएस्ट सेक्स रेशियो मतलब क्या हो गया? लोएस्ट किस में है? तो लोएस्ट हम लोग कब बोलते हैं? जब फीमेल ज़्यादा होते तो हम लोग हाई बोलते. तो इसमें फीमेल लो रहेंगे तो मेल ज़्यादा रहेंगे. समझ रहे हैं? किसी एक चीज़ को पकड़ के चलो. अगर आप दोनों लो के पकड़ोगे ना तो आपको कन्फ्यूजिंग होगा. तो मैं यहाँ पे फीमेल्स ही पकड़ रही हूँ समझने के लिए. तो अभी लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछा है. सेक्स रेशियो हम लोग को हाई कब होता है? जब फीमेल्स का ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे लो पूछा है तो फीमेल्स कम होंगी. फीमेल्स कम होंगे तो मेल्स का ज़्यादा होगा. तो हम लोग को देखना है कि जहाँ पे मेल्स ज़्यादा है वो लोएस्ट सेक्स रेशियो है. समझा ये लॉजिक? सो इट वुड बी इन केरला. What changes should take place in Maharashtra to bring about a balanced sex ratio and how much change is necessary? तो महाराष्ट्र में कितना दिखाया गया है? 929. तो what all changes can we do in महाराष्ट्र के बैलेंस? ये रेशियो सेम होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. ओके सो दिस वुड बी योर होमवर्क. ये आप लोग सोचो अकॉर्डिंगली कि आपको क्या लगता है क्या चेंजेस करना चाहिए वैसा. Coming towards the next topic, geographical explanation. In region where the proportion of female is more than male, predominantly the out migration of men is high. The out migration is very often for employment purpose, for example Kerala. But where the proportion of female is less than males, in most cases the birth rate of female is less. क्या बोला गया है देखो. इन रीजन्स में द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल इज़ मोर देन मेल्स, कि जहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा है मेल्स से, वहाँ पे आउट माइग्रेशन ऑफ मैन इज़ हाई. आउट माइग्रेशन मतलब क्या? सोसाइटी से वो लोग बाहर जाते हैं. क्यों? बिकॉज फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बट वे द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल इज़ लेस, जहाँ पे फीमेल लेस है एंड मेल्स ज़्यादा है, दैन इन बोथ केसेस द बर्थ रेट ऑफ फीमेल इज़ लेस, के वहाँ पे फीमेल का बर्थ रेट ही लेस. ये तो कॉमन है. बराबर. Have a class discussion based on following questions. How many people in your house are studying? What is their age? Again, you need to find out. How many people in your house are working for a living? Okay, living के लिए कितने work कर रहे? How old are they? And do your grandpa still work? And what is their age? ये आप लोग find out करो. ठीक है. Age structure. In a region when the population is subdivided as per the age groups, this is called as age structure of the population. बराबर. कि पहले हम लोग ने क्या देखा? हम लोग अगर सेक्स रेशियो मेल्स और फीमेल्स के नंबर वाइज कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं. बट जहाँ पे एज वाइज कैटेगरी किया है कि एज में कितने लोग आते हैं, 10 to समझो 10 to 25 में कितने आ रहे, 25 to 50, जब मैं एज वाइज डिवाइड करती हूँ उसको हम लोग बोलते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. It is useful for the projection of population and for understanding the dynamics of the age structure arrangement. Similarly, it also helps in understanding the proportion of active and dependent population. इसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि एक्टिव पॉपुलेशन कौन कौन सी है. एक्टिव मतलब क्या? जो अभी काम कर रही है, यू नो दे आर वर्किंग फॉर अ लिविंग. एंड डिपेंडेंट इज के जो डिपेंड है. अभी जैसे हम है, वी आर स्टडिंग, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, राइट? सो वी बिकम अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन. वैसा. In India, the productive population is the population between the age 15 and 59. Productive मतलब क्या? And the one who can work, who can earn. This group of people is active in services and businesses.
They direct participate in the economic activities of a region. In regions where the proportion of this population is more, especially youth, development is rapid. बराबर कि 15 के बाद से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं that is active because 15 के बाद one can start earning, right? So उसके बाद वाले जो होते हैं that is called as active participant, के जो active है, जो काम करना चाह रहे हैं, but उसके अंडर 0 to 15 एंड फिर 59 के ऊपर वी कैन कॉल इट एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन. द डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू टू सब ग्रुप्स. The people below 15, as I said, and the people above 60 also fall in the dependent category. But the knowledge and experience make them a valuable asset to the whole of society. But जो 60 के ऊपर है उनका एक प्रॉफिट चीज़ है कि they have knowledge, right? तो दे कैन मेक अ लिविंग कैसे भी करके. बट जो 0 to 15 है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट. The population of a region can be classified into working and non-working groups. Again, हम लोग बहुत सारे ways में population को classify कर सकते हैं. पहले हम लोग ने देखा we can classify into basis of males and females. फिर हम लोग ने देखा we can classify into basis of ages, के age के base पे भी हम लोग उसको classify कर सकते हैं. Now we can even classify the population under the base of कि कौन कौन working में है and कौन कौन non-working में है. These people who are not in jobs or profession despite being in the productive age group come under the non-working group. Okay, तो non-working group में कौन कौन आता है कि one who is capable, कि कोई है जो जॉब कर सकता है पर वो जॉब नहीं कर रहा, जैसे हम लोग है, but since we are studying so it's fine. Okay, so ऐसे लोगों को हम लोग किसमें गिनते हैं? non-working group में. दिस नॉन वर्किंग ग्रुप इज़ डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ग्रुप. बराबर हम लोग डिपेंडेंट है वर्किंग ग्रुप पे, हम हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड है. क्यों? बिकॉज वो लोग काम कर रहे हैं. इफ द proportion ऑफ वर्किंग population इज हायर इन अ रीजन then the population is termed as industrious. such a region has rapid development. तो जहाँ पे वर्किंग लोगों का क्वांटिटी ज़्यादा है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस रीजन. वाई? बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एंड दैट रीजन हैज़ अ रैपिड डेवलपमेंट. एरिया ऑफ रेसिडेंस. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेसिडेंस? वेयर द पीपल रिसाइड, जहाँ पे लोग रहते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स एज पर द एरिया ऑफ रेसिडेंस, दैट इज रूरल एंड अर्बन. तो हम लोग वापस रूरल एंड अर्बन बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं. बराबर पहले हम लोग ने मेल फीमेल में देखा, फिर हम लोग ने एज वाइज देखा, फिर अभी हम लोग ने वर्किंग नॉन वर्किंग के वाइज देखा. नाउ वी कैन इवन क्लासीफाई ऑन टू अर्बन एंड रूरल. रूरल मतलब क्या? गांव साइड हो गया, एंड अर्बन मतलब क्या? सिटी साइड हो गया. बराबर तो वैसे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. People in the rural areas are mainly employed in primary occupations, and in urban areas the proportion of people working in secondary and tertiary occupation is large. बराबर कि जो एरिया विलेज साइड हो गया या गांव साइड हो गया वहाँ पे लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, राइट. उनको एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग है, उसमें सब लोग में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं. वाइल इन जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. The population in the rural area is involved in the production of food grains, right? Because वहाँ पे lands available है, वो लोग farming कर सकते हैं. तो यहाँ पे मतलब वहाँ के लोग फूड ग्रेन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है. एंड द अर्बन एरिया पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द रूरल पॉपुलेशन फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स. बराबर. एंड हम लोग यहाँ पे फार्मिंग वीमिंग कर नहीं सकते, यहाँ पे ऑलरेडी स्कैरसिटी है लैंड का. तो वी पीपल वी डिपेंड ऑन देम सो दैट दे कैन प्रोवाइड अस फूड ग्रेन्स. Prepare bar graphs on the basis of table given below. Okay, तो you need to prepare a bar graph. bar graph आता है सबको बनाना, सिंपल है. तो यू नीड टू क्रिएट अ बार ग्राफ. एक साइड आप लोग कंट्री लिख लोगे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आप लोग को परसेंटेज लिखना है एंड यू नीड टू मेक अ बार ग्राफ. ओके. In lesson number 6, which is page number 41, what do you think are the reason for the changing land use pattern of Moda village? Okay, you need to go there, understand कि वहाँ पे जो मोदा विलेज है वहाँ पे लैंड का यूज़ में चेंजिंग क्यों है. What kind of changes have taken place, and due to the change in land use, do you think there has been a change in population? If yes, what is the change and why? तो लैंड में अगर चेंज हुआ तो आप लोग को लगता है पॉपुलेशन अफेक्ट होगा. या इट विल डेफिनेटली अफेक्ट. सो हाउ? अभी आप लोग थोड़ा आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू लिखो. व्हाई डू यू थिंक कि लैंड में चेंज हुआ तो पॉपुलेशन चेंज हुआ? अकॉर्डिंग टू यू राइट योर ओपिनियन. लिटरेसी. नाउ टॉकिंग अबाउट लिटरेसी.
In society, some people are literate and others are illiterate. In our country, a person who can read and write is termed as literate. बराबर. तो literate हम लोग किसको बोलते हैं? एक कोई person है जो अच्छे से पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं literate. This definition can vary from one country to another, but this definition can be different. Okay, दूसरे country में literate का definition अलग हो सकता है, but हमारे country में कैसा है, जो person पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको हम लोग literate बोलते हैं. The percentage of literacy throws light on the quality of population. बराबर. कि जितना नंबर literate का ज़्यादा है उतना पता चलता है कि वो population में क्या quality है. People above the age of 7 can be classified into literates and illiterates. Okay, कि 7 के बाद हम लोग categorize कर सकते हैं कि okay, he is literate or not or she is literate or not. Literacy is an indicator of the social and economic development of a society. If the percentage of literacy is higher, then the country develops socially and economically. Literacy leads to the development of a cultural and progressive society, right? Literacy एक important factor है. जहाँ जहाँ पे literacy rate ज़्यादा होगा, the development of that region is way more than compared to literacy in underdeveloped area. Why? Because वहाँ पे literacy उतना ज़्यादा नहीं रहेगा. Also, please ignore the cooker का city which is taking place. But ठीक है. I hope I would be audible. I would say loudly. Migration. Now let's talk about migration. Migration हम लोग ने देखा when people migrate to one country, like one place to another, not country, is called as migration. The movement of an individual or a group from one place to another is termed as migration. तो migration हम लोग किसको बोलते हैं? जब people या group of people एक place से दूसरे place पे migrate होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं migration. This could be for a short period, long period or permanently. बराबर. कोई कोई short period के लिए माइग्रेट होते हैं, कोई कोई लॉन्ग पीरियड के लिए और कोई कोई परमानेंटली भी हो जाते हैं. मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रांसफर, टूरिज्म, नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर एक्सेट्रा आर द रीजन वाई पीपल माइग्रेट. बराबर. इफ आई एम गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, ओके, तो मैं आई विल गो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो मेरा एक रीज़न हो गया फॉर स्टडिंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस, एंड आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सपोज कोई कंट्री में वॉर हो गया एंड पीपल हैव माइग्रेटेड टू आवर कंट्री फॉर एवर, दैट इज कॉल्ड एज फॉरएवर माइग्रेशन, लाइक परमानेंट माइग्रेशन फॉर वॉर वाला रीज़न वैसा. तो मैनी रीज़न कुड बी देयर एंड मैनी कैटेगरीज कुड बी देयर के शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, परमानेंट पीरियड. ओके. Regions from where people migrate show a fall in population. Such region experience a shortage of manpower. On the other hand, the areas to which they migrate show an increase in population and a strain on the public amenities and facilities. Due to migration, the composition of population also changes. बराबर. कि समझो मैं यहाँ से migrate हो गई तो यहाँ का एरिया में क्या दिखता है? शॉर्टेज ऑफ मैन पावर. बराबर. बिकॉज यहाँ से पूरा ग्रुप माइग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे मैन पावर कम हो जाएगा. प्लस जहाँ पे वो लोग माइग्रेट हो रहे, वे दे आर माइग्रेटिंग, दैट प्लेस वुड रिसीव अ स्ट्रेन और रिसीव्ड अ सडन टेंशन. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज इंक्रीज. तो जो नेचुरल अवेबिलिटीज़ होती है, जो सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, उसमें देयर कुड बी चेंज. ओके. सो ऑल ऑफ दिस माइग्रेशन टॉपिक, लाइक माइग्रेशन का जो टॉपिक है या ये जो फैक्टर है, दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन. कैन यू टेल? Answer the following on the basis of question. Which country have less than 10% migrant population? Okay, which are the countries with the migrant population between 10 and 20? तो percentage of immigration population दिया है, आपको सिर्फ बताना है कि easy है. देखो, first I will explain, second also I will explain, third, fourth, fifth you do it by yourself. तो which countries have less than 10%? तो 10% से less किसका है? तो you can see there is Afghanistan, there is Brazil, फिर there is Bangladesh, then you have India. Yeah, so all of these countries have less than, okay, yeah, there is Greater Britain as well. तो जो जो लोगों का माइग्रेशन 10 से ज़्यादा, 10 से कम है तो 0 है. फिर
ग्रेट ब्रिटेन का 8% था तो वो भी मैंने इन्वॉल्व किया सारे, तो वो सारे कंट्रीज आ जाएंगे. विच आर द कंट्रीज विद अ माइग्रेट पॉपुलेशन ऑफ 10 to 20. तो 10 to 20 के बीच में किस किस का है, तो वापस देखो 12 वाला है तो जर्मनी आ जाएगा. फिर नीचे नीचे इफ यू कम 12 वाला अगेन है तो इट वुड बी USA. ओके, विच एरिया हैव मोर देन 20 से ज़्यादा देर इज 62. विच आर द कंट्रीज विद अ माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20%. बराबर, तो 20 से ज़्यादा सब आ जाएंगे. 62 हो गया, 42 हो गया, 37 हो गया, 24. विच आर कंट्रीज लाइक कुवैत, हांगकॉन्ग, इज़राइल, ओमन, सऊदी अरेबिया. ओके, so all of these will come. Find the reason behind the migrate population of more than 20%. तो जो 20% से ज़्यादा है उनका रीज़न what do you think कि क्या रीज़न हो सकता है. तो all of these three you have to write it on your own. Graphical explanation. Migration is an important factor affecting the distribution of population. As I said, अभी हम लोग ने देखा कि migration एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके थ्रू population में फ़र्क हो सकता है. Due to migration, there is a redistribution of population of a region. The structure of population also undergoes a change, right? That a particular region has to face a lot of things. The above table has given the percentage of migrant population of some selected countries. In the countries where the percentage of migrant population is more, job opportunities, good business prospects, the availability of natural resources and economic development are the main cause. बराबर, हम लोग कब से वही देख रहे हैं कि मेन कॉज क्या हो सकता है, लोग क्यों माइग्रेट हो रहे हैं. बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं. अगर मुझे यहाँ पे अच्छी खासी जॉब नहीं मिल रही है, इफ आई एम गेटिंग अ पर्टिकुलर नाइस जॉब, सो आई विल गो देयर. सो दैट कैन बी वन रीज़न. इफ़ देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अच्छी है, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे मिल रहे हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे अच्छे, दैट इज़ ऑब्वियस राइट दैट आई विल गो देयर. सो दिस आर द मेन कॉजेज वाई पीपल माइग्रेट. On the other hand, political and social factors, economic backwardness, etc. are some of the reasons accounting for a low percentage of this population. Even though the percentage, a thin population is low in India when compared to the population, the actual figures are large. बराबर कि इंडिया का comparatively बाकी सब countries का हिसाब से आप लोग देखोगे तो we are very बहुत कम है हमारा माइग्रेशन का नंबर. वालिन इफ़ यू सी कुवैत है, फिर ओमन है, सऊदी अरेबिया, ये लोग तो बहुत बड़े नंबर्स में है. Can you have a discussion on the basis of following question and answer the following question. What would you call the people who work in the places mentioned below? Okay, तो कोई अगर फार्म फील्ड में वर्क कर रहा था, आप उसको क्या बोलोगे? If someone is working in factory, so what you will call them? In hotel, hospital, etc. Do it by yourself, students. It is easy. Use your brain power. Now you need to use your brain. In India, 0.52% of population are migrants. What is the actual number of people who migrated to India? Okay, तो इंडिया से migrants का परसेंट 0.52 है. बट इंडिया में जितने माइग्रेंट्स आए हैं उनका रेशियो आप लोगों को निकालना है. What is the age limit of people doing these jobs? In lieu of work, what do people get? For which of these jobs is it necessary to be educated? Which of these jobs involves skill? Which jobs can be done without education or skill? So you need to understand कि क्या क्या reasons हो सकते हैं. फिर you need to find out कि ओके आ गए, ठीक है, ये रीजंस है, तो कौन से ग्रुप आया होगा, लाइक विच एज ग्रुप पीरियड वुड हैव कम, what all skills do they have in this job, why are they coming, and so on. Population, a resource. Population as a resource is important for the economic, social and cultural development of any country. Rather than population number, it is quality of population which is important. Along with the percentage of literacy, sex ratio and age group, health, education levels, etc. also considered while thinking of population as a resource. The supply of skilled or unskilled labor depends on the quality of population. बराबर कि population किन किन चीज़ों पे depend करता है. It's right that it do depends on all of these ratios, but again
it is other factors as well, like health हो गया, education levels हो गया. All of these factors also depends on, like, all of these factors also do affect population. The supply of skilled or unskilled labors also depends upon. So there are many points which depends upon population, okay, which affects population.